اس کی خطا کیا تھی؟ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا. تو اب توجہ چاہوں گا حضرت کہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت کے اندر ہو تو اللہ باہر کر دیتا ہے. ارے سہارنپور اب تو اپنی اوقات میں رہو, تم تو پہلے سے ہی باہر ہو, اندر کیسے جاؤ گے؟ بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. تو حضرات نکال دیا گیا جنت سے. ہو گئی غلطی کیا؟ نبی کی تعظیم نہیں کی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ تعظیمی بجا لاؤ تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. اللہ نے کہا سجدہ کرو, نہیں کیا. کہ اتنی سی بات پہ کوئی کافر ہو جائے گا؟ اللہ نے آپ سے بھی تو کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز پڑھو. اب جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا کیا کافر ہو جائے گا؟ اللہ نے آپ سے بھی تو کہا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکات دو. اب جو مسلمان زکات نہیں دیتا تو کیا کافر ہو جائے گا؟ سجدہ نہیں کیا, صرف اتنی بات پہ وہ کافر نہیں ہوا. اسی لیے اللہ نے پوچھا سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے بتا. سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ جب کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو میں نے اس سے پوچھا بتا تجھے نماز سے کون روکتا ہے؟ بولا کاہلی روکتی ہے, سستی روکتی ہے, غفلت روکتی ہے, میرا گناہ روکتا ہے. تو پتا چلا اب معاملہ دوسرا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ صرف فاسق ہے, گناہگار ہے, کافر نہیں. لیکن جب خدا نے ابلیس سے پوچھا سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے بتا, تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا, تجھے عمل سے کس نے روکا؟ تب وہ بولا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, اس لیے کہ میں آگ سے آدم خاک سے, میں آگ سے آدم خاک سے. تو اب یہ بات عمل کی نہیں عقیدے کی آئی, اس لیے کافر ہو گیا. بے شک, بے شک, بے شک, کیا بات ہے, سچ ہے. تو حضرات اسی کا ماننے والا ایک دوسرا بدعقیدہ آیا اور اس نے آ کر کے ایک قانون بنایا کہ دیکھو ایسا ہے بھیا, ہر مسلمان ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے. میں نے کہا ہر جانور آپس میں بھائی بھائی نہیں ہے, یہ ہر انسان بھائی بھائی کیسے ہو جائے گا؟ اچھا اس کو یہ فکر کیوں ہوئی؟ چکر کیا ہے؟ واٹ از پالیٹکس؟ معاملہ کیا ہے؟ تو بولا ایسا ہے نا, جب میں ہر انسان کو بھائی بناؤں گا تو رسول بھی انسان ہے, بھائی بنانے کا چانس نکلے گا. اچھا ابے تو قانون تو نے بنایا ہے, تو مان. ہم نہیں مانتے تیرے قانون کو, قانون تو نے بنایا ہے, تو مان. ارے چائنا اگر کوئی قانون بنائے تو ہم کیوں مانے؟ چائنا والے مانے. پاکستان اگر کوئی قانون بنائے تو ہم کیوں مانے؟ پاکستان والے مانے. انگلینڈ اگر کوئی قانون بنائے تو ہم کیوں مانے؟ انگلینڈ والے مانے. تو ابے 2 درجن والوں, قانون تم نے بنایا ہے, تم تو مانو ہر انسان بھائی بھائی, اور رسول کو بھائی کہنے کے لیے تم نے یہ قانون بنایا. تو ہم رسول پہ بعد میں غور کریں گے, پہلے تو اپنے قانون کی روشنی میں بتا فرعون انسان ہے کہ نہیں, یزید انسان ہے کہ نہیں, ابو جہل انسان ہے کہ نہیں, نمرود انسان ہے کہ نہیں, اور ہر انسان بھائی بھائی. تو ابو جہل, اور اگر اللہ نے سہارنپور کو زیادہ بزرگی دی ہے, فرعون سے زیادہ عظمت والے ہو, تو فرعون کے بڑے بھائی, نمرود کے بڑے بھائی, شداد کے بڑے بھائی, اب ہم سے کوئی پوچھے گا دیوبندی مولوی کسے کہتے ہیں تو ہم کہیں گے نمرود کے بڑے بھائی, فرعون کے بڑے بھائی, قارون کے بڑے بھائی. ارے چلا تھا رسول کو بھائی بنانے, خود ابو جہل کا بھائی بن گیا. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, کیا بات ہے. حضرات تم پیغمبر کی توہین کا دروازہ کھولو گے. اگر سہارنپور پیغمبر کی توہین کا دروازہ کھولنا جانتا ہے تو احمد رضا کا ہاتھ اس دروازے کو اکھاڑنا جانتا ہے. نعرہ
तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर। तो हजरात, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा मानते हैं, मगर मानते मानते कुछ लोग अटक जाते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं। तो अब देखो, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, जमानो जमानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है। अल्लाह तहत से पाक है, अल्लाह फौक से पाक है, अल्लाह दाईं से पाक है, अल्लाह बाईं से पाक है, अल्लाह खलफ से पाक है, अल्लाह सलफ से पाक है, अल्लाह नीचे से पाक है, अल्लाह ऊपर से पाक। इसीलिए कभी भी अल्लाह को ऊपर वाला मत कहो, क्योंकि अगर अल्लाह ऊपर वाला हो गया तो क्या मतलब, जमीन पे छूट है। तो अल्लाह न नीचे वाला है न ऊपर वाला, अल्लाह न नीचे फिक्स है न ऊपर फिक्स, वो हर जगह है। अरे वो हिंदुओं का खुदा है, जहां फिक्स कर दिया हिल नहीं सकता। हमारा खुदा तो वो है जो हाजिर व नाजिर है, जर्रे जर्रे में जलवागर है, कायनात को मुहीत है। तो अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, अल्लाह खलफ से पाक है। अरे अल्लाह का खलफ है क्या? अल्लाह का पीछा है क्या? जो रसूल के पीछे आए वो रसूल का खलीफा। तो जब अल्लाह खलफ से पाक है तो ये अल्लाह का खलीफा कहां से आया? जब अल्लाह सलफ से पाक है तो ये सल्फी कहां से आया? तो ठहरो और समझो, अल्लाह खलफ से पाक है, ये हमारा ईमान है। और अल्लाह खलफ से पाक है, ये हमारा ईमान है। और आदम खलीफा हैं, ये कुरान है। तो ना हम ईमान छोड़ेंगे ना हम कुरान छोड़ेंगे। अल्लाह खलफ से पाक है, मगर आदम खलीफा हैं। अल्लाह खलफ वाला नहीं, मगर आदम का खलीफा होना यकीनी है। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन है जो आदम से पहले हो। जब अल्लाह खलफ से पाक है और आदम खलीफा हैं तो आदम खलफ जरूर है। तो अब ढूंढना यही है कि वो कौन है जो सलफ हो और आदम खलफ, वो कौन है जो पहले हो और आदम बाद में, वो कौन है जो माँ कब्ल हो और आदम माँ बाद, वो कौन है जो बिफोर हो और आदम आफ्टर। तो सुनो, मैं नहीं कहता, रसूले पाक फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। बेशक बेशक सच है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। जमीनों जमा से पहले, मकीनों मकान से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले, लौह से पहले, कलम से पहले, कुर्सी से पहले, जन्नत से पहले, दोजख से पहले, हूर से पहले, खिलमा से पहले, फर्श से पहले, अर्श से पहले, जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, सितारों से पहले, आबशारों से पहले, दरिया से पहले, कतरा से पहले, सहरा से पहले, अफ्ताब से पहले, अवताज से पहले, अब्दाल से पहले, नबीयीन से पहले, सिद्दीकीन से पहले, सालेहीन से पहले, मुजद्दिदीन से पहले, मुहक्किकीन से पहले, मुफस्सिरीन से पहले, जिब्रील अमीन से पहले, मीकाईल से पहले, इज़राइल से पहले, इसराफील से पहले, हजरत आदम से पहले, नूह से पहले, याहिया से पहले, जकरिया से पहले, याकूब से पहले, शुएब से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, मूसा से पहले, ईसा से पहले, यूसुफ से पहले, यूनुस से पहले, अब्दे मुनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले, हजरत आमना से पहले। सांस टूट गई मगर लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा एक बात बताइए, हमारे मोहल्ले में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर क्या सिस्टम है? हमारे इधर पोता बाद में होता है, दादा पहले। आपके इधर क्या चल रहा है? यही है ना? इतने खामोश क्यों हो? अरे यही है ना? अरे मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूं, मैं बात आदमियत की नहीं कर रहा हूं, मैं बात वजूद की कर रहा हूं कि एक हम हैं, हम बाद में, हमारा बाप पहले, हम बाद में, हमारा दादा पहले। एक मेरे नबी का नूर है जो अपने आबा से पहले, अपने दादा से पहले, अपने अजदाद से पहले, अपने बाप से पहले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, बस 2-4-5 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं।
अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो हजरात, अब मैं आपको ये लिस्ट तो कंप्लीट करवा नहीं पाऊंगा कि किस किस से पहले, अगर लिस्ट गिनवाऊंगा तो पूरी रात इसी में हो जाएगी और लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। और मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कबीला बैठे हैं, सोच रहे हैं कभी ये हटें फिर हम डटें। तो हजरात बस मुख्तसर यूं समझिए, बस मुख्तसर यूं समझिए कि बादज रब कबले सब, बादज रब कबले सब। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको, अगर मैं आपको पहले मिसाल समझिए, अगर मैं आपको एक 4 व्हीलर गिफ्ट में दूं तो आप रखेंगे कहां? अरे भाई रखने के लिए जगह चाहिए, और आपके पास जगह ही ना हो तो आप रखेंगे कहां? तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह से पहले बनाया तो रखा कहां? हर जगह से पहले तो रखा कहां? रखने के लिए जगह चाहिए। जन्नत में हो नहीं सकता, इसलिए जन्नत से पहले है, लौह से पहले है, कलम से पहले है, सूरज से पहले है, चांद से पहले है, नबीयीन से पहले है, सिद्दीकीन से पहले है, सालिहीन से पहले है, दाता से पहले है, ख्वाजा से पहले है, हर जगह से पहले है। तो रखा कहां? तो कहा ए नाज़िम, तू जगह ढूंढ रहा है, जगह ढूंढ रहा है तू? अरे मेरा नबी और जगह का मोहताज, अरे ये नूर है नूर, ये जगह का मोहताज नहीं। अल्लाह करे अगला जुमला समझ में आ जाए। ये नूर है नूर, जगह का मोहताज नहीं। अब जिसको अपनी जगह बनानी हो वो इस नूर का मोहताज हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जगह ढूंढ रहा है तू बेवकूफ, जगह ढूंढ रहा है, मैंने बना करके कहां रखा? अरे इतने बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं और ये सुन्नियों का स्टेज है, अगर कलम फिसले तो कलम तोड़ो, जबान फिसले तो जबान दोहराओ, और हम सब तौबा करने वाले के मानने वाले हैं, तौबा पे यकीन रखते हैं। अरे वो इब्लीस है जो गलती करने के बाद अकड़े, आदम के सामने अकड़ गया, अभी तक अकड़ा है, तौबा करता ही नहीं। वही हाल इनका है। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब ने समझाया, मुफ्ती फारूक साहब कबिला ने समझाया, और दीगर उलमा ने समझाया, हिंदुस्तान ने समझाया, पाकिस्तान ने समझाया, बांग्लादेश ने समझाया, आखिरी कोशिश मक्का मदीना ने समझाया, समझ में नहीं आया, अकड़ा है। हम समझ गए ओहो फला स्कूल से डिग्री लिया है, अगर फरिश्तों से ताल्लुक होता तो झुक जाता। तो हजरात बहुत एहतियात से बोलना पड़ता है। जी तो चाहता है कि कह दूं, मगर दिमाग रोकता है। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कबिला बैठे हैं, पूरा दारुल इफ्ता तो साथ में है, नहीं बचेंगे। मुफ्तियाने कराम चारों तरफ घूम रहे हैं, और अहमद रजा की तलवार, शरीयत की धार, जानशीने जुल्फकार नहीं छोड़ेगी। तो जब मैं इतना जानता हूं तो बोलूं क्यों? मैं ना बोलूं और तुम समझ जाओ, तो ना बोलने पे फतवा लगेगा हजरत? मैं ना बोलूं और तुम समझ जाओ तो समझने पे भी नहीं लगेगा, और खामोशी पे भी नहीं लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो तुम समझोगे क्या? तो फिर ऐसा करता हूं कि जितना बोलने में हरज नहीं उतना बोलता हूं, बाकी समझ जाओ। गौर करो, जब अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बनाया था तब अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, ओनली अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, कोई दूसरा ना था। और जब अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया तब कोई तीसरा ना था। तो बनाने वाले ने बनाया, तीसरा है ही नहीं जहां रखा जाए, मगर बनाने वाला तो है। बाकी समझ जाओ, बाकी समझ जाओ। अरे बनाने वाले ने बनाया, नूर बनाया, बना करके कुर्बे खास में रखा। तो हजरात वक्त भी काफी हो चुका है,
پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ تفصیلی گفتگو سماعت کریں گے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔ طوفان نوح لانے سے کیا خاک فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ میرے بولنے میں اگر کسی طرح کی خامی ہوئی ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔